بھیگے کاغذ کی ناؤ کا مسافر رخصت ہوا۔ جی ہاں ناظرین، ایوب صابر اب ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارا ساتھ نبھاتی رہیں گی۔ نیک ہے اور کون بد انسان ہے، اس کی تو بس تجھ کو ہی پہچان ہے۔ کیا خبر جو یا گنہگاروں میں ہو، وہ تیری قدرت کے شہکاروں میں ہو، ہم کو دکھلا نیکیوں کا راستہ، تجھ کو ہے اپنے نبی کا واسطہ۔ دل کو دو دنیا کی دولت بخش دے، یعنی انسان کی محبت بخش دے۔ یہاں پر جو ہمارے شہر میں ایک بات بڑی معروف تھی یہ کہ ایوب صابر کے یہاں وہ جدید لگو لیتے شاعری، تو مجھے بڑی دلچسپی تھی اس زمانے میں اور آج بھی ہے، خاص طور سے جو ہماری اردو شاعری میں ادب میں جدیدیت کا یا ماڈرنزم کا جو رجحان آیا وہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، اگرچہ ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں پہنچ گئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہیں، بلکہ وہ بھی ماڈرنٹی کا ایک ایکسٹینشن ہے، ایک توسیع ہے۔ اس تناظر میں بھی اگر آپ ایوب صابر صاحب کی شاعری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایوب صابر کل جتنے ریلیونٹ تھے آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لفظ ایک استعارہ ہوا کا ان کے یہاں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ ہماری جو کلاسیکل ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم ہمارے سرے ارباب کہتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، ہوا لفظ کا بار بار استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے شیڈز آپ کو ان کے یہاں دکھائی دیں گے۔ کبھی ہوا جو ہے وہ ایک منفی قوت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے اور کبھی ہوا کا استعارہ ان کے یہاں زندگی کے استعارے کے طور پر آتا ہے۔ ایک ہی لفظ کو کئی مفاہیم میں باندھنا یہ شاعر کے قابل الکلام ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ واقعات تاریخ کی کتاب میں ملتے ہیں کہ جب کسی قبیلے میں کوئی موت ہوتی تھی تو اس کا ماتم کیسے منایا جاتا؟ قبیلے کے لوگ میت کے گرد کس طرح جمع ہو کر رقص کیا کرتے تھے، کیسے آتشی ناچ گایا جاتا تھا، گیت گائے جاتے تھے۔ انسانی تہذیب نے وہ ہزاروں برسوں کا جب سفر طے کیا تو طوالت کے ساتھ قدریں بدلی اور یقیناً اس میں ایک درجہ وہ آیا جسے ہم انسانی تہذیب کا اعلیٰ ترین درجہ کہتے ہیں، یا اعلیٰ ترین درجوں میں سے ایک، اور وہ درجہ وہ ہے جہاں ہم اس وقت رہتے ہیں۔ ایک تعزیت کی نشست کی ذہن میں میرے تصور میں اگر کوئی شکیل کی تو آپ لوگ شاید واقف نہ ہو اور یہاں تشریف کرنا مہمانان بھی واقف نہ ہوں گے اس بات سے کہ جب ہم نے اپنا شہری سفر شروع کیا تھا سن 80 کے آس پاس تو مختلف شہروں میں جو نشستیں برپا ہوتی تھی اور جو چھوٹے موٹے مشاعرے ہوتے تھے ان میں ہم لوگ مدعو شعراء کی حیثیت سے شرکت کرتے تھے، اور اسی دور میں بھیونڈی میں کئی نشستوں میں شرکت کا موقع ملا، اسی لیے مجھے
हालांकि भिवंडी से मेरा उससे पुराना ताल्लुक है, मेरे वालिद साहब के जमाने का ताल्लुक है, इससे यहाँ पे बैठे पर मेहमान होने की बात है। लेकिन मेरे शेरी सफर में भिवंडी ने जितनी मदद की, इस तरह पसीराई मुझे हासिल हुई, अगर वो हासिल ना होती तो शायद मैं आगे का सफर नहीं तय कर सकता। उसमें हमारे कई बुजुर्ग थे, मोहम्मद साहब तो यहाँ तशरीफ फरमा है, आशिक गलपुरी साहब थे, उमर शफक साहब थे, और कबीर अहमद राही साहब थे। इस तरह की शख्सियत भी हमारे दरमियान जो अपनी बुजुर्गाना शफकत के जरिए हमारा हौसला बढ़ाने की। और दूसरी तरफ वो नौजवान छोरा थे जो हम कदम थे, हम उम्र थे, हम मजाक थे, और शेरी सफर में वो भी एक हौसला बल के साथ चल रहे थे। उनमें ये 4 नाम बहुत अहम थे जिनका रौनक भाई ने भी जिक्र किया और दीगर हजरात ने भी, कि उनमें मासूम अंसारी थे, उनमें राज प्रतापगढ़ी थे, उसमें रौनक अफरोज थे, और उसमें गराता था भी नहीं, और कलम एहसास की शिद्दत में डूबा भी नहीं। कश्मकश में था कि मुझ पर नींद का गलबा हुआ, कश्मकश में था कि मुझ पर नींद का गलबा हुआ। मैंने आंखें मूंद ली, बाबे तखय्युल हुआ। सोच में था, कश्मकश में था कि मुझ पर नींद का गलबा हुआ। मैंने आंखें मूंद ली, बाबे तखय्युल हुआ। जब कहा अबे रवा ने अब न कुछ परवाह कर, जब कहा तब्बे रवा ने अब न कुछ परवाह कर, तब कलम से कह दिया मैंने कि बिस्मिल्लाह कर। जब कहा तब्बे रवा ने अब न कुछ परवाह कर, कलम से कह दिया मैंने कि बिस्मिल्लाह कर। मंजिले दुश्वार फिर तय पा पियादा हो गई, राह साबिर की मोहब्बत में कुसादा। हवाओं में नजर पड़ता हूँ, बैठ कर टूटी हुई कश्ती में साबिर, बैठ कर टूटी हुई कश्ती में साबिर, लोग दरिया पार करना चाहते हैं। लौट जाए जिनके हौसले हो ताजगी, लौट जाए जिनके हौसले हो ताजगी, क्योंकि अब समुद्री सफर करीब है। इतनी है साबिर मेरी तालीम बस, इंतजारी की हद हो गई, इतनी है साबिर मेरी तालीम बस, 10 सफर रसूल पर बैठा है। ऐसा नहीं है कई सारी जिंदगी में उनकी कद्र नहीं थी, कद्र हुई, जिसका एक नमूना आप हजरात के सामने पेश कर रहे हैं। ये कोई मुद्दे की बात नहीं है, बल्कि सच है। एक बात का जिक्र है कि 2005 में बस मसावात के मौजूदा सर जनाब अंसारी साहब ने मरहूम अयूब साबिर के कागज को फरमाया, रौनक साहब अयूब साबिर खड़ा सोना है, खड़ा सोना है। तो मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने फरमाया कि मामलात हो या लेन देन के मामले हों, जितना मैंने अयूब साबिर को खड़ा पाया अब तक किसी और को नहीं पाया। इसलिए मैं आपको ये इजाज़त देता हूँ, उनकी इजाज़त में कोई बड़ा मुशारा रखता हूँ, मैं उसमें 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये का खुद खर्च करूँगा। इस पर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैंने वाकई ऐसा ही किया, जिस पर मुझे हैरत हुई। हैरत से मैं उन्हें देखने लगा, क्योंकि अयूब साबिर पर उन दिनों अयूब साबिर का मजमून कलाम नाव देने कागज की छत पर आ गया था, जिसके अफगानिस्तान तस्वीर गिरा और आज मुशाहरे में उन्होंने वो करके दिखाया जिसका उन्होंने वादा किया था। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अयूब साबिर की पद अफजाई में छोटा नहीं, मासूम अंसारी, राज प्रतापगढ़ी, अयूब साबिर और ये खाकसार, ऐसे 4 अहबाब थे जो न सिर्फ हम वतन थे बल्कि बचपन से साथी थे। हम चारों यार एक साथ ही शेर व शायरी के मैदान में कदम रखी और एक साथ ही एक ही वस्ताद मरहूम कमर प्रतापगढ़ी से इस्लाही सुखन अयूब साबिर के ताल्लुक से मेरे उनके रिश्ते समझने से 1984 तक हमारे एक प्रॉपर्टी में उनका अपना नहीं था,
वो रूम भी कराया करते थे और उनको भाड़ा भी। जब मैं उनका रजिस्टर चेक करता था तो उस शख्सियत का कोई भी किराया बाकी नहीं। दौर कैसा भी रहा कि हमारे शहर में आम बताने का बड़े मंदी का दौर, मगर उनका रजिस्टर में कहाँ बताया नहीं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ जो यहाँ पे चला है आज शायद कहीं उसका मैं दावे से कह सकता क्योंकि मैं सन 1900 मैंने देखा हालांकि मैं लिख कर लाया था कि चुनाव करूंगा, मगर जो बोलना था मैं सारी बातें जो बातें नहीं आई मैं वो आप लोगों की निगाह कराना। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल जलील अंसारी ने भी अय्यूब साबिर की शख्सियत और शायरी पर गुफ्तगू की। सैकड़ों इसमें अजीब सा नजरिया पेश किया हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बयान में अमल है कि खुलता नहीं जो नजीब है उसको चाहते कि तुम खोलो, क्यों नहीं खुलता? अब वो उसी वक्त खुलेगा जब तुम अमल की मैदान में आओगे, अमल के मैदान में आओगे। कहते हैं खुलता नहीं तो सैकड़ों पैकेट तराजा है, सैकड़ों पैकेट तराजा है मगर खुलता नहीं। क्या है मेरा ब्लॉकेट बार बार ब्लॉकेट होने तो आप आजमाते रहिए, समझ में आ जाएगा क्या है मेरा ब्लॉकेट हुनर, खुलता नहीं। और कुछ दिन खास ठानो, ये बयान दे रहे हैं, और कुछ दिन खास ठानो और बर्बादी करो, और कुछ दिन खास ठानो और बर्बादी करो। इतनी आसानी से राजे गैर खुलता नहीं, इतनी आसानी से राजे गैर खुलता नहीं। क्या पर तुम पहले गीली मिट्टी रखो तो सही, क्या पर तुम पहले गीली मिट्टी रखो तो सही। हमसे फिर कहना कि पन्ने पूजा में खुलता नहीं, हमसे फिर कहना है। अभी आदत ने फरमाया है कि पूरे मुआशरे में लोगों को मिलकर सोचना होगा कि हम शराबों को तक नहीं, हम चलती हवा और उसकी शांत और उसकी राह उसकी रफ्तार को क्यों नहीं देते। वो कहा जाने वाली कीमती जलावा को बुझाएंगे, जलावा को क्यों बुझा रही है उस पर नजर क्यों नहीं देते। वही नाच है कि हमसे फिर कहना कि बंदे खुदा अगर खुलता नहीं, ये तो मैंने उसके चेहरे से नकाबे पूछी, ये तो मैंने उसके चेहरे से निकाले नोट की, वरना साबिर वो किसी पर मुंहधर खुलता नहीं। ये जालिम के चेहरे से निकाल ठीक लेने का, निकाल नोट लेने का एक पैगाम दे रहे हैं कि जालिम का जुल्म अगर बर्दाश्त करते हो तुम समझ लो कि तुम भी जालिम तहजीब में कि जालिम जुल्म को रोकना है, जालिम को मारना नहीं है, लेकिन जालिम को जुल्म को रोकने के लिए जरूरी है कि जालिम के हाथ बांधे। अगर तुमने ताकत है तो बढ़कर उसका जुल्म खत्म करो, वरना जबान से उसकी बुराई जाएगी, वो भी नहीं होगा तो जिन मुझे बुला जाना, मगर ये समझकर करीब नहीं। तो ये उन्होंने कहा है कि निकाले नोट की, मैंने उसके चेहरे से निकाली नोट की, वरना साबिर को किसी पर वो घर पीता नहीं। साहब को नामवरी और शोहरत से बहुत चिड़ थी, वो नापसंद करते थे। और उन्होंने कहा कि जाने के बाद अब इसी रंग को बदला रखे, नाव भीगे कागज के पढ़ ले, तो मैं समझता हूँ कि कुछ यहाँ आ गया है, वो आपको बहुत आसानी से समझ जाए। उन्होंने जो बात निजाम अर्थ की जो भी उनके हाल है उसकी तारीफ की कहा है, वो यूं है कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अफवाह मेरे करे कौन का दावा। ये हर एक के यहाँ ये चीज मिल जाती है। और जैसा कि यहाँ पे नाम दिया गया रस्म मुसावरात के 4 शायर, उसमें अय्यूब साबिर इस अंदाज में शेर कहते हुए मासूम जो है उन्होंने इसी मजमून को थोड़ा सा हटकर कादिर के अंदाज में कहा और वो शेर उनकी सलाह। मासूम ने कहा था कि कादिर ने होश कीजिए
चांदी के ताज कातिल में हो कि ये चांदी के ताज पे उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं, ये चांदी का ताज और कातिल को हो किया जाना, मैं समझता हूँ कि कमर साहब जो उनके पिता मुकदम रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हरचंद के वो मंदार में तो नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने जो अंदाज दिया है तो चारों तारेगा ने उसको बहुत ऊपर तक पहुंचाया। और फिर जैसा मैंने कहा कि और भी लोगों ने जो कहा है, जब ने कहा है, अंजू रानी ने कहा था कि यहाँ तो सभी मुकद्दस परिवार वाले, यहाँ तो सभी मुकद्दस परिवार वाले हैं, मैं अपने खून के कब्जे कहाँ जा रहे शाह साबिर साहब खून के कब्जे कहाँ कहते थे और अपनी मासूमाना अंदाज में अपने शरीफाना अंदाज में पेश करते थे। अब ये सुनने वालों की तो आप भी कम होती है कि वो उसे महसूस करें या न। बात इतनी लाभोली और शोहरत की, साबिर बहुत वाक़ई साबिर थे, अय्यूब भी थे, साबिर हो गए। मेरा काफी मराठी का मामला रहा है, कभी कभी मैं उनको नहीं हूँ कि यहाँ अय्यूब साबिर खुद आ जाते हैं। मैं अगर मिलने जाता था तो बहुत खुश होते थे और कभी कभी शिकायत करते थे कि मैम आप आते नहीं है। मैंने कहा मैं पहले तो मसरूफ रहता था और अब मेरे पैर की जो तकलीफ है उससे मुझको मसरूफ नहीं माजूर करेंगे, इसलिए मैं उनका हूँ, मैं नहीं आ पाता। बोले अब मैं भी इतनी फुर्सत नहीं पाता है कि आपके पास आऊँ, आपके पास रहूँ। मारूफ शायर व अदीब जनाब मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब ने भी अय्यूब साबिर पर खाका पढ़ा और उनसे मुताल्लिक़ सैर अफ़ज़ा गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी रिपोर्ट आप देख रहे हैं हालात डेली हालात न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए।